Okay, chapter is gender. So basically we have four types of gender. Means gender is divided into four parts. First is masculine, second is feminine, third gender is common gender, and fourth gender is neutral gender. Okay, so understand what is masculine. In common language we say male and female, these are two genders, but in English language we have four. For male we use masculine, okay. For female we use feminine. Third gender is common gender. uh, Understand what is common gender. Common gender is a gender which is used for both male and female, both used for both male and female. And what is neutral gender? Basically neutral gender is used for non-living things. गेटिंग माई पॉइंट? मेरा पॉइंट समझ में आया तुमको या नहीं आया तीनों को? है ना? जेंडर चार टाइप के होते हैं, मेल, फीमेल। मेल को बोलते हैं मैस्कुलाइन, फीमेल को बोलते हैं फेमिनाइन। थर्ड होता है कॉमन जेंडर, ठीक है। कॉमन जेंडर इज यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल दोनों के लिए अगर कुछ वर्ड आए काम में, उसे हम बोलते हैं कॉमन। एंड फोर्थ न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए काम में आता है। अब देखो एग्जाम्पल दिखा देते हैं इसका। सबसे पहले मैस्कुलाइन का एग्जाम्पल है मैन, बॉय, ठीक है ना, किंग। फिर फीमेल मतलब फेमिनाइन के लिए गर्ल, वुमेन, ठीक है। देन कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर चाइल्ड, टीचर, ओके। अब इन योर स्कूल बोथ मेल एंड फीमेल टीचर्स आर प्रेजेंट, है ना, दे वर्क। जैसे in your class, in your 7th class, English is taught by female and sorry, Hindi is taught by female and English is taught by male. So for both male and female you use teacher. तुम मुझे भी टीचर बोलते हो, और जो भी तुम्हारे जैसे रश्मि मैम पढ़ाती हैं, यार मृदुला मैम पढ़ाती हैं, या प्रतीची मैम पढ़ाती हैं, तो उनको भी तुम टीचर ही बोलते हो ना, होता है ना। तो जेंडर क्या है, एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया, लेकिन दोनों के लिए तुमने टीचर बोल दिया, कॉमन वर्ड काम में ले लिया टीचर, तो वो हो गया तुम्हारा कॉमन जेंडर। फिर है तो जैसे गरिमा और जतिन। जतिन जो है लड़का है, गरिमा इज अ लड़की, ठीक है। बट फॉर बोथ गर्ल एंड बॉय वी यूज चाइल्ड। जतिन मेरे को मत बता
कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। शांति से सुन, नहीं समझ में आ रहा है उतना बोला कर। दिस इज कॉमन जेंडर फॉर स्टूडेंट. You all are students and all the girl students are also student, but we are using student, a common term for both girl and for boy, ठीक है ना. Friend can be a male or a female, but we use friend for both the genders. अरे क्या कर रहे हो तुम ये लोग, कितनी बार मना किया ना, स्क्रीन टच नहीं होनी चाहिए, बस मोबाइल के साथ खेल करते रहो. तुम्हारी क्लास में ही बहुत दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है तुम दोनों को तो. फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर. फॉर एनी नॉन लिविंग थिंग वी यूज न्यूट्रल जेंडर, like book, pen, table, chair, tree. We use neutral. Now there are few rules for converting feminine gender into, sorry, converting masculine gender into feminine gender. There are few rules. Rule number 1 says if we have to change, we have to make masculine gender into feminine, in rule number 1 we completely change the word. For example, boy, what we are doing, we are completely changing the word. Boy, girl, we are not adding something, we are not subtracting something from masculine word, we are completely changing it into another word to make it feminine. Okay. Rule number 2 says add ess, add ess at the end. For example, lion. Lion is male. If we have to convert it into feminine, we add ess to the word lion to make it feminine, that is lioness. समझ में आ रही है? Okay. Rule number 3. Rule number 3 says drop the last vowel and add ess. Like drop the last vowel. This is something different. How to drop? That means you know vowel a, e, I, o, u. ठीक है ना? These are vowel. In the word actor, see, there are two vowels. Vowel number 1, a, and the last vowel is in this word is o. भाई फर्स्ट वोवल क्या हो गया? ए. और इसी वर्ड में आखिरी, मतलब आखिरी वोवल, उसके बाद कोई वोवल नहीं आना चाहिए, मतलब ओ आ गया इसमें, और उसके बाद क्या रहा है? आर. आर वोवल नहीं है, उसके बाद कोई लेटर ही नहीं है, तो मतलब ओ क्या हो गया? तुम्हारा लास्ट वोवल हो गया. अब आपको इसको क्या बनाना है? फेमिनाइन बनाना है. तो आप क्या करोगे? इस वाले वर्ड को हटा दोगे, मतलब आप काम में नहीं लोगे. आप क्या करोगे? ए सी टी आर और ई एस एस काम में ले लोगे. एक्ट्रेस.
ESS जोड़ दोगे एंड में। समझ में आई क्या है? ठीक है। इन रूल नंबर 4 देखो, व्हाट रूल नंबर 4 सेज। रूल नंबर 4 says rule number 4 says add ESS or SS or S. For example, word is God. Add ESS to it, that is goddesses. Mr. use S, मतलब add S, Emma S, तो Mrs. Okay. Word is prince. Add add double S, princess. This is male and this is female. Okay. Rule number 5. कुछ रूल्स ऐसे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रूल से नहीं बनते हैं, जैसे विडोवर। विडो, जो मेल पार्ट होता है, जो मेल जो वर्ड होता है उसी में ही एक वर्ड छुपा हुआ होता है फीमेल के लिए भी। जैसे विडो है, विडोवर है, तो ER मैंने हटा दिया तो क्या बचा? विडो। तो विडो फीमेल के लिए हो गया। हीरो, हीरोइन, मतलब कोई रूल नहीं है, बस ये क्या वर्ड्स आपको याद होने चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या बनेगा। ठीक है। रूल नंबर 6, हमें एक वर्ड दे रखा है। वी हैव अ वर्ड लाइक ग्रैंडफादर। व्हाट वी विल, दिस इज द फॉर्मर एंड दिस इज द लेटर। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं फॉर्मर, और दिस लेटर इज, मतलब जो पहले आए वो फॉर्मर और जो बाद में आए वो लेटर। ठीक है ना। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज दिस वर्ड फादर टू मदर एंड ग्रैंड इज ग्रैंड। ठीक है ना, तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। तो मतलब आपको या तो फॉर्मर या फिर लेटर पार्ट जो है वर्ड का वो चेंज करना पड़ेगा टू मेक इट फेमिनाइन। नाउ द लास्ट, कुछ वर्ड जो होते हैं प्रोनाउन के वो अलग होते हैं सबसे, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे ही इज शी, ये क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया। हिमसेल्फ, हरसेल्फ। याद रखो, ही, हिम, और शी, हर। She and her is used for female and he and him is used for male. ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? What you will do? First, I am telling you what you have to do in your copy. Exercise 1 and exercise 3 homework in copy. समझ में आ रही है? पेज 95 मैंने लिख दिया है, बार बार मत पूछना मेरे से। ठीक है।
अभी अपन एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं, जो आप कॉपी में बुक में ही लिख लो। अब देखो क्या है, हॉस हाँ क्या, समझ करे मत कुछ भी। देखो एक्ट्रेस, द